Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good afternoon, student. Now we have to study about the compounds. In the previous lecture, we have seen about the elements. Now about the compounds. Okay. Now see the questions. Find out. क्या है questions? Which of elements are metal, which are non-metal, and which are metalloids? Which of the elements are metal, which are non-metal, and which are the metalloids? So now example of metals are iron, gold, silver, hydrogen, oxygen, elements which are metal. Metals are gold, silver, iron, mercury, etc. And which are non-metal? Oxygen, sulfur, phosphorus, chlorine, fluorine. These are non-metals. And the silicon, boron are the metalloids. ये क्या है? मेटालॉइड के एग्जाम्पल्स है. Now second question. Question number 2. Take sugar in test tube and heat the test tube. Observe what happens, what remains behind. So when we take the sugar in test tube and when we heat it, the black color material left behind. तो क्या बचता है? Left color का material. And this black color material is nothing but the carbon present in the sugars. Now next question. Using the tongs, hold a magnesium ribbon. Using the tongue, hold the magnesium ribbon in a flame and observe what changes takes place in above experiment. Now see, this experiment is shown in figure 14.2. So when we hold the tongue, this is called as the tongue. ये क्या है? Tongue है, pair of tongue है. Okay, and yes, here we take the magnesium ribbon. So what happens when we take the magnesium ribbon? That time the magnesium ribbon start burning. क्या करता है मैग्नीशियम का रिबन? बर्न होना स्टार्ट होता है. एंड बिकॉज ऑफ बर्निंग द ब्राइट लाइट एंड हीट एनर्जी इज ऑब्टेन. तो क्या होता है? ये बर्निंग की वजह से वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ही क्या है, तेज लाइट, इंटेंस लाइट, और क्या दिखाई देता है हम लोगों को? और क्या है? ये हीट उसमें से निकलता हुआ दिखाई देता है. In the first case, the sugar melt and then it loses the water, leaving behind a black substance. This black substance is carbon. What does this imply? It means that sugar contains the carbon. How many element is sugar made up of? The sugar is made up of the three element. Sugar किससे बना है? Three element से. So what are that three element? Carbon, hydrogen and oxygen. Because yes, formula of the sugar is C12H22O11. This is the formula of the sugar. And it is called as the sucrose. क्या बोला जाता है इसको? सुक्रोज. तो here the carbon, hydrogen and oxygens are present in the sugar molecules. So three elements are there. What does the name carbon dioxide imply? How many and which element is this substance made up of? So this made up of the carbon and oxygen. Now see the formula of the carbon dioxide. It is CO2. It is CO2. Okay, so now in CO2 carbon is one element and oxygen is the another element. Okay, so in this way there are the two elements. Okay, now next. Substance formed by a chemical combination of the two or more element called as the compound. So what we have seen in the is formula of the C6H12O6, that is glucose, C12H22O11. Okay, so in this compound, in this substance there are two or more than two types of element. इसमें क्या है? Two or more than two types of elements are present. अब देखो, in first one, in glucose there are the three element carbon, hydrogen and oxygen. In second one there are the two element carbon and oxygen, and in the sugar molecule there are the three element carbon, hydrogen and oxygen.
So those substances which are made up of two element or more than two element by chemical combination is called the compound. Now yes, first question, which of those are the compounds which are element? Now yes, here three names of the substance are given. First one is the water, second is the oxygen, third is the carbon dioxide. Now water, you know already the formula of the water is H2O. Now in H2O there are hydrogen and oxygen element. तो here there are the two element. इसमें कितने element है? Two, hydrogen and oxygen. In the second one, oxygen is O2. तो here only one atom is present. इसमें क्या present है? One atom. Okay. So this oxygen molecule is element. It is not compound. And carbon dioxide is this. It is made up of the two elements. It is made up of the two elements. One first element is the carbon and second is oxygen. Okay, student? Understood? Okay. Now see the second question. What is the smallest particle of compound called? What is the smallest particle of compound called? Compound का smallest particle को क्या कहते हैं हम लोग? वो इसमें पूछा है. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा? ये atoms of elements. जब उसको हम compound को break करेंगे तो the smallest particle will be the element होगा. For example, when we break the water molecule, that is compound, so we will get the smallest particle of that compound as the hydrogen and oxygen atoms. Hydrogen और oxygen मिलेगा. Always remember, the substance is a compound only if substance is compound only if its molecule are made up of atoms of the different types. अब हम किसी भी सब्सटेंस को कंपाउंड कब बोलेंगे? जब वो सब्सटेंस एक से ज़्यादा टाइप के एटम से बना हुआ हो. ओके. नाउ यस, वी हैव सीन हियर O2. O2 is made up of only one type of the atoms. So it is molecule, but it is not a compound because it have the only one type of the atoms. Water is a compound. One molecule of water is made up of the two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. और ये किससे बना हुआ है? टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन से बना है. हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दैट इज इट बर्न्स. ऑक्सीजन हेल्प कॉम्बिनेशन यस कंबशन. अब देखो जो वाटर जिससे बना है, जिससे वाटर फॉर्म हुआ है, वो क्या क्या एलिमेंट है? हाइड्रोजन. एंड दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन. दो कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ सी, दिस हाइड्रोजन इज द कंबस्टिबल गैस. कौन सी गैस है? कंबस्टिबल गैस. Combustible gas. Okay. And oxygen help in burning. Oxygen help in burning. Help in burning. Help in burning. Okay. It burns. Oxygen it's burn and O2 help in burning. And when these two combines, there is a formation of water molecules. It have the different property than its constituent elements. जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ जो कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टी टोटली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है. दैट वाटर एक्सटिंग्विशेस द फायर. अब इसमें देखो ये क्या है? एक बर्निंग में हेल्प करता है और एक क्या है? बर्न होता है. बट इससे बना हुआ जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड खुद क्या करता है? वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, बुझाने का काम करता है. तो what happens when there is a formation of compound? The property of the its constituent elements changes. उसके constituent element के क्या होते? प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है when there is a formation of compounds. In other words, the properties of compound are different from those of the constituent elements. तो जो कंपाउंड्स है उसके क्या है? प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं, एज वी हैव सीन इन द एग्जांपल ऑफ द वाटर कंपाउंड. लाइक एन एलिमेंट,
Compound is also written in an abridged form. A molecule of compound is formed by chemical combination of atoms of two or more elements. Therefore, molecular formula is used to represent a compound. A molecular formula of compound is a short form of its name written with the help of the symbol of constituent elements and the number of their respective atoms. Now collect the information and prepare a table. Constituent element and molecular formula of the various compounds such as salt, alum, blue vitriol, ammonium chloride, baking soda, chalk, washing powder. Now see compound water. Constituent element. So yes, how you will complete this table. Okay. So now here the water and its constituent element is hydrogen and oxygen. Symbol and number of the atom. Now hydrogen 2H and 1 oxygen. Molecular formula H2O. Characteristics: it extinguishes the fire. Okay, extinguish करता है fire. Next one is the salt. So there are many salt, but we are only talking about the NaCl that we use in our daily life. ओके NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, जो हम सभी को क्या है फूड के साथ में यूज करते हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर sodium and chlorine. Symbol and number of atom. Now in NaCl there is a one sodium atom and one chlorine atom. Molecular formula is NaCl. Now characteristic. This is salty in taste. It is neutral in nature. न्यूट्रल है नेचर और क्या है सॉल्टी उसका टेस्ट होता है. नेक्स्ट blue vitriol. Now blue vitriol is copper sulfate. Blue vitriol is copper sulfate. Okay, now constituent element are copper, sulfur and oxygen. So here there are the three different type of the element. Now symbol and number of atoms. Copper is 1, a copper 1 atom, sulfur 1 atom and oxygen are 4 atoms. Now molecular formula is C2CuSO4. Characteristic: when we dissolve it in water it looks blue in color. This is crystalline in nature. क्या होता है ये क्रिस्टलाइन नेचर है. नेक्स्ट वन द अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तो अमोनियम क्लोराइड ओके इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. किससे बना है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन. इन तीन एलिमेंट से वो बना हुआ है. ओके molecular formula is NH4Cl और कैरेक्टरिस्टिक अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट. ये भी क्या है सॉल्ट है. ओके नेक्स्ट वन इज द बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट. बेकिंग सोडा क्या है NaSCO3. it have the sodium, hydrogen, carbon and oxygen. So there are the four different elements present in the sodium chloride. So in this way you have to make the table. And sodium chloride is used in the making. It is used in cooking. Okay, and it is added while making the dhokla, idlis, etc. Now yes about the mixtures. अब हमको किसके बारे में देखना है? मिक्सचर्स के बारे में. नाउ प्रिपेयर अ शरबत, प्रिपेयर अ भेल. अब यहाँ पे क्या बोला है? ये शरबत बनाने के लिए और भेल बनाने के लिए. तो शरबत में क्या क्या ये चीज़ें ऐड करेंगे वाइल मेकिंग द शरबत? तो वी विल ऐड द शुगर, लेमन ओके इन द वाटर. उसमें ऐड करेंगे. प्रिपेयर अ भेल. अब भेल में क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? कुरमुरा और क्या ऐड करेंगे? सेंग, चना और सॉल्ट, चिलीज. तो इस तो क्या फॉर्म होगा? भेल. डिड द टेस्ट ऑफ ओरिजिनल इंग्रेडिएंट चेंज ड्यू टू द अबव प्रोसेस? तो योर आंसर विल बी नो. When you drink the sharbat, that time you will taste the taste of water, you will taste the taste of the sugar and taste of the lemon will also come. So here the property of constituent elements are not changing. And in bhel, when you eat the bhel, that time you will taste the taste of the potatoes
and the other ingredient which are added in the bhel. So did the taste of original ingredient changes due to the above process? So your answer will be no. A mixture is formed by mixing the different elements or compounds. The proportion of various compound in a mixture is not fixed. यहाँ पे proportion क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को ज़्यादा मीठा शरबत पसंद है तो क्या करेगा, ही विल ऐड द मोर शुगर इन इट. एंड किसी को क्या है, तीखा भेल पसंद होगा तो ही विल ऐड द मोर चिलीज. ओके, किसी को पोटैटो ज़्यादा पसंद होगा तो क्या होगा, ये बॉइल्ड पोटैटोज उसमें ज़्यादा ऐड करेगा. किसी को अगर सेंग और क्या है, चना पसंद होगा तो भेल में वो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी. तो इन दिस वे द मिक्सचर डू नॉट हैव द फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द constituent elements or compounds. No chemical change takes place during the formation of mixture and no new substance is formed. तो मिक्सचर में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते. कैन यू टेल व्हाट आर द मिक्सचर यूज इन एवरीडे लाइफ? अब आप सभी लोग, यस यू ऑल आर अवेयर अबाउट द खिचड़ी. खिचड़ी के बारे में सभी को पता है. तो खिचड़ी क्या है, एक मिक्सचर है. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं, राइस, पल्सेस, सॉल्ट और भी ये जो चीज़ें हम लोगों को क्या रहती है, पसंद रहती है, वो चीज़ें उसमें ऐड करते हैं. ऑल आर yes, are all mixture useful to us? So your answer will be no. All are all mixtures useful to us? तो क्या होगा आंसर, नो. सभी मिक्सचर्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते. ओके, और भी इस मिक्सचर के एग्जांपल क्या है, एलॉयज लाइक क्या है, ब्रास जो तांबा है, स्टील, ये भी क्या है, इस मिक्सचर का एग्जांपल है. एंड द एयर इज इटसेल्फ अ मिक्सचर. एयर क्या है, मिक्सचर है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल. तो दिस इज द मिक्सचर. हाउ विल यू सेपरेट ईच कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ द सेमोलिना, सॉल्ट एंड आयरन फीलिंग्स? अब देखो, फॉर एग्जांपल, वेरी वेल नोन एग्जांपल, आयरन फीलिंग्स. ओके, सपोज द stones or soil are mixed with the iron filling. So using the magnet we can separate the iron substance. The magnetic substance iron will stick to the iron, and those who are non-magnetic, they will remain as it is. So using this physical method, separate yes, physical method. Okay, using the magnet we can separate the iron. Now salt. Suppose salt is dissolved in the water. So now by evaporating the water we will get the salt again. ओके, तो क्या होगा, इस तरह से इवापोरेट करके हम लोग सॉल्ट वापस से गेन कर सकते हैं. यू माइट रिमेंबर दैट मिक्सिंग अनवांटेड सब्सटेंस इन एनी फूड स्टफ इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन. अब आप लोगों ने एडल्ट्रेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें क्या लर्न किया है कि कोई भी अनवांटेड चीज़ क्या करना, फूड में ऐड कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अडल्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल, अब जो है ये जो ब्लैक पेपर होती है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, अब उसके अंदर क्या करना, पपाया के सीड्स को ऐड कर देना, तो ये क्या है, अडल्ट्रेट है, अडल्ट्रेशन है. In other words, an adulterated food stuff is also kind of the mixture. अब ये जो adulterated food stuff है वो भी क्या है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है. When an unwanted and harmful substance is mixed with another, when an unwanted and harmful substance is mixed with another substance, the resulting mixture no longer remains useful. In such cases, we separate the unwanted ingredient from the mixtures. For this purpose, simple and easy methods such as straining means filtering, sifting, picking, sorting, winnowing, combing with the magnet and sublimations are used. अब जब भी कोई अनवांटेड चीज़ें मिक्स हो जाती यूजफुल थिंग्स के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, और सेपरेशन के मेथड्स अलग अलग अप्लाई करते हैं. और वो मेथड्स के क्या क्या नेम्स है, स्ट्रेनिंग मीन्स फिल्टर, यस, फिल्ट्रेशन. ओके, नाउ सपोज इन वाटर द स्ट्रॉ ऑफ द राइस और wheat are now floating. So by filtration we can remove the
दैट स्ट्रॉ, सिफ्टिंग, पिकिंग, पिकिंग मीन्स क्या है, चुनना। नाउ ये इन योर हाउसेस यू हैव सीन योर मदर्स आर पिकिंग द स्टोन्स फ्रॉम द राइस, क्या करती है, राइस से स्टोन को पिक करती है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज योर younger sister's notebooks and your notebooks get mixed, then you can separate by sorting. तो by seeing the standard, okay, you sort out, उसको क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं। और जो पोस्टमैन है, जो लेटर्स उसके पास आते हैं तो अलग अलग क्या है, ये एरिया वाइज उसकी शॉर्टिंग करते हैं। विनोइंग, अब विनोइंग क्या है, ये विनोइंग, तो इन दिस मेथड of the winnowing, the food grains are taken into the yes vessels, vessels में लिया जाता है, and it is drop from the top, और उसको क्या किया जाता है, टॉप से ड्रॉप किया जाता है, गिराया जाता है। and because of the wind, the food grains which are light in weight, they falls, okay, far from that person, and those who are heavier, they falls बिलो ऑफ दैट वेसल्स, उस वेसल के नीचे वो गिरता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। कॉम्बिंग विद द मैग्नेट, अब मैग्नेट की हेल्प से उसको क्या करना, सेपरेट करना। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, उस सब्सटेंस को हीट करते हैं, एंड इट्स वेट वेपर्स आर कलेक्टेड, एंड देन दैट वेपर्स आर कूल डाउन, उसको क्या करते, कूल डाउन करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो उसमें इम्प्योरिटीज रहती है दैट लेफ्ट इन द जार, एंड द प्योर मटेरियल विच आर सब्लिमेटरी आर इज कूल डाउन एंड दे आर कलेक्टेड सेपरेटली। तो इस तरह से सब्लिमेशन से क्या करते हैं हम लोग, उन चीज़ों को सेपरेट करते हैं। विच इंग्रेडिएंट फ्रॉम विच मिक्सचर कुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड्स, अब पूछा है कि कौन से मटेरियल, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल विच मटेरियल कैन बी सेपरेटेड by which method. We have learnt about the properties of matter and effect of heat. These properties are also used for separating the component of the mixture. Okay, now yes, page figure 14.3 देखो। Now yes, observe figure 14.3. Now see the winnowing. तो ये देखो, ये क्या है, ये दिस इज द विनोइंग। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है वो इसमें लिया हुआ है, इस वेसल, इस चीज में जो सुपड़ा होता है उस सुपड़े में लिया हुआ है यहाँ पे, ओके। और उस फूड ग्रेन को क्या कर रही है, वो लेडी ऊपर से गिरा रही है। और जो इसमें लाइटर वेट है, बिकॉज ऑफ द विंड, विंड की स्पीड की वजह से, दे आर फॉलिंग, ओके, अवे फ्रॉम दैट वुमेन, उस औरत से जाके वो दूर गिर रहा है। तो यहाँ पे जो हैवियर है वो उसके जस्ट नीचे गिर रहा है, और जो लाइटर है वो दूर जाके गिर रहा है। तो इन दिस वे yes the lighter particle get separated, in that there are no food grain, जिसके में फूड ग्रेन नहीं होता वही लाइटर होता है, तो वो दूर जाके गिरता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सीव है, चालन है, उस चालन से इसको सेपरेट किया जा रहा है। यहाँ पे भी आटा दिख रहा है, ये चालते हुए, ये आर फिल्ट्रेशन। अब देखो ये एवरी डे इन आवर हाउसेस द टी आर फिल्टर्ड बाय आवर मदर, ओके। क्या करते हैं घर में मम्मी आप लोगों की, क्या करती है, वो उसमें जो टी जो हम बनाते हैं उसके अंदर टी लीव्स होते हैं, जिंजर होता है, तो जिंजर और टी लीव्स जो हम ऐड करते हैं वो जो है टी जो फॉर्म होता है उससे सेपरेट करने के लिए उसको फिल्टर करते हैं। यहाँ देखो चर्निंग, ओके। तो टू रिमूव द बटर फ्रॉम द कर्ड, कर्ड से बटर निकालने के लिए इस तरह से क्या करते हैं, चार्निंग करते हैं। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, अब डिस्टिलेशन, तो दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द सॉलिड थिंग्स आर डिजॉल्व इन द लिक्विड और लिक्विड आर डिजॉल्व इन द लिक्विड। जो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें किसके लिए यूजफुल है ये, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो या कोई दूसरा लिक्विड किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो, एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, अगर उनके क्या है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस हो, ओके, लिटिल बिट लार्ज गैप्स हो, तो मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज वेरी यूजफुल। फॉर एग्जांपल नाउ यस यू नो अबाउट द क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मालूम है आपको, जो
क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, जिससे क्या निकाला जाता है, डीजल और पेट्रोल, कैरोसिन, कोल तार, पेट्रोलियम गैस, ये सब चीज़ें किससे ऑब्टेन होती है, क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल जो होता है। ओके, उस पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होती है, और उसमें जो डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, सभी का जो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं और उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करना इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो इसी को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन द सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर, तो व्हेन वी स्टार्ट द मिक्सचर ऑफ द salt and water, the water get converted into the vapor, and vapors are condensed, then it is get converted into the water again, and the salt remain in that distillating flask. जो distillating flask होता है उसमें वो salt रह जाता है। Take some salt water in the round bottom flask, arrange the apparatus as shown in the figure, start heating the liquid in the flask placed on the wire gauge। अब ये जो असेंबली दिया यहाँ पे 14.4 में, तो दिस इज कॉल्ड द वायर गॉज। ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, वायर गॉज, एंड दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, एंड दिस इज द दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है। नाउ ये थर्मामीटर हियर and stand and burner, and this is the tripod stand, and this is the beaker, okay, and this is the condenser। ये क्या है, कंडेंसर है। इन कंडेंसर देयर इज इनलेट एंड आउटलेट फॉर वाटर। इसके अंदर क्या है, इनलेट और आउटलेट है। फ्रॉम इनलेट द वाटर एंटर्स इनटू द कंडेंसर, एंड फ्रॉम द आउटलेट द वाटर कम्स आउट। So when the vapors passes through this inner tube of the condenser, the water takes its heat, and that vapors get cooled down and get converted into the water again. So in this way, the water is collected in the this conical flask, and the salt will remain at the bottom of the this conical flask, round bottom flask। इस round bottom flask में क्या रह जाता, salt। Arrange the apparatus as shown in the figure. Start heating the liquid in a flask placed on the wire gauge. Observe the conical flask. Slowly, droplets of water start falling into it. Where did the drops comes from? अब पूछ रहा है कि ये ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं। तो जो यहाँ पे जो हम हीट करते हैं उस वाटर को, उसका जो वेपर होता है वो कूल डाउन होने के बाद में वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट से। तो दैट वाटर ड्रॉपलेट गेट कलेक्टेड इन द फ्लास्क। द सॉल्ट वाटर is the round bottom flask boil on heating. The water in it vaporizes. When the vapor passes through the inclined tube, it gets cooled due to the surrounding cold water and condenses to form the water. Thus, drops falling into the conical flask are of the water from the salt solution in the round bottom flask. Salt remained behind in the flask when all the water has collected in the conical flask. This method of separation is called distillation. Distillation is also used for purification of the impure liquids. impure liquid को भी क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए distillation process यूजफुल होता है। Is the water that falls from the cloud naturally pure? Is the water that fall from the cloud naturally pure? So your answer will be yes. But when it passes through the polluted area, the gases like SO3, NO3 get mixed with that rainwater, and the water become acidic. So wherever there are the pollution, so that water do not remain the naturally pure. Which properties of liquid are seen in the distillation method? Which properties of liquid are seen in the distillation method? So what happens here in distillation? The which property of liquid are seen in the distillation
मेथड्स। अब पूछा है लिक्विड का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता, तो क्या है ये लिक्विड ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, तो दिस प्रॉपर्टीज are seen here. For what purpose is distilled water used? Now to perform the experiment, the distilled waters are used. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एंड वाटर को एकदम से प्योर फॉर्म में जहाँ पे देने की ज़रूरत होती है, लाइक यस यूजिंग इट इन द मेडिसिन्स में इस्तेमाल के लिए। जैसे कि कभी आपने सुना होगा यस डॉक्टर बोलते हैं आपको कि क्या ये पार्टिकल्स से सस्पेंडेड पार्टिकल्स से कुछ एंटीबायोटिक्स के होते हैं, यू हैव टू बॉयल द वाटर, और कुछ उस बॉटल के साथ में डिस्टिल वाटर का एक पाउच भी रहता है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं आपको कि क्या करना है, आपको इस लेवल तक इस सॉलिड पार्टिकल्स में वाटर ऐड करना है, तो वो डिस्टिल वाटर उस पाउच में रहता है, तो वो वाटर हम लोग उसमें ऐड करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। अब क्या है ये दूसरा मेथड, सेपरेटिंग फनल का यूज करके क्या करना, सेपरेशन करना। नाउ सी the arrangement. Figure 14.5 separation method. Now yes stopcock and here water and kerosene and separating funnel. तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेपरेटिंग फनल है, ये क्या है कैरोसिन है, और ये क्या है वाटर है। तो नाउ यस कैरोसिन एंड वाटर फॉर्म द टू डिफरेंट लेयर्स, दोनों क्या फॉर्म करते हैं, टू डिफरेंट लेयर, दे आर इमिसिबल टू ईच अदर, वो दोनों मिसिबल नहीं है। तो नाउ यस ओपनिंग द स्टॉप कॉक स्लोली, फर्स्ट द वाटर्स आर कलेक्टेड इन द बीकर। क्या करते हैं इसको, स्टॉप कॉक को हम एकदम स्लोली क्या करते हैं, ये वाटर को नीचे गिरने देते हैं, और उसके बाद में जैसे ही वाटर का लेवल ख़त्म होता है, ये स्टॉप कॉक को क्या करते, टाइटली उसको क्लोज कर देते हैं, तो वाटर जो है वो सेपरेट हो जाता है कैरोसिन से। When a mixture of the two immiscible liquid is left undisturbed, two layers are clearly seen to have formed. अब बोला जो immiscible liquid है उसके दो layers form होते हैं। The heavier of the liquid remain below and lighter liquid float on it. तो इसमें क्या हो जाता है, जो लाइटर होता है, हल्का होता है, वो कहाँ रहता है, ऊपर फ्लोट करता है, और जो हेवियर होता है वो नीचे सेटल्ड हो जाता है। Two liquid in a mixture can be separated by making use of this property. तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दो लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसीजर, pour a mixture of kerosene and water into the separating funnel with stop cock closed. अब क्या करना है हम लोगों को, कैरोसिन और वाटर को उस सेपरेटिंग फनल में लेना है। क्लोज द स्टॉपर, फिक्स द सेपरेटिंग फनल फॉर्मली ऑन ए स्टैंड। अब इसके बाद में इस सेपरेटिंग फनल को उसमें स्टैंड पे लगा के कुछ टाइम तक रख देना है, सो दैट क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के बाद में क्या होगा, ये टू लेयर्स एकदम क्लियरली दिखाई देगा हम लोगों को, और एकदम से टू क्लियर लेवल विल फॉर्म। Close the stopper. Fix the separating funnel firmly on a stand. Leave the mixture in funnel undisturbed for a while. Water will remain below and kerosene will float on it. तो क्या होगा यहाँ पे, जो वाटर होगा वो नीचे होगा और केरोसिन कहाँ होगा, ऊपर। Now without shaking the funnel, remove the stopper. अब क्या करना है, फनल को बिना शेक किए, बिना थोड़ा सा हिलाए, ओपन द स्टॉप कॉक टू कलेक्ट द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फनल इन अ बीकर। उसको बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए क्या करना है, जो वाटर है नीचे उसको क्या करना, कलेक्ट करना है। क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन ऑल द वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर। अब क्या करना है, ये जैसे ही वाटर पूरा का पूरा नीचे ड्रेन हो जाएगा, तो हम लोगों को स्टॉप कॉक को क्या करना है, टाइट कर देना है। Close the stopcock when all water is collected in the beaker. Now kerosene and water are separated. तो इस तरह से क्या होगा, वाटर कैरोसिन से सेपरेट हो जाएगा। ओके, नाउ मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, तो ये क्या है, लेबोरेटरी में यूज होने वाला मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का।
सी दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स है। तो इसमें क्या रहता है? देयर आर द अरेंजमेंट फॉर कीपिंग द टेस्ट ट्यूब्स। इसके अंदर क्या रहता है? टेस्ट ट्यूब रखने के लिए अरेंजमेंट रहता है। एंड इट रन ऑन मोटर्स, और इसमें क्या फिट रहता है? मोटर। तो मोटर क्या करता है? रोटेट होता है, और जो इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स व्हेन रोटेटेड, उसको जब क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू उसको रोटेट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल गेट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में वो क्या होते हैं? सेटल्ड हो जाते हैं। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स ये जो हैंड से रन करते हैं, देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होल्डर्स आर देयर। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए होल्डर्स अरेंज है, और ये हैंड से जो हैंडल लगा उसको हम रोटेट करते हैं, तो क्या हो जाता है? ये सर्कुलर मोशन में ये टेस्ट ट्यूब्स रोटेट होते हैं, और इसकी वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो उस बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? उस टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके, और वो जो लेयर्स है वाटर का, उसको हम सेपरेट कर देते हैं, और सॉलिड जो है टेस्ट ट्यूब में बचा रह जाता है। टर्बिड वाटर, इंक, मिल्क, बटर मिल्क, ब्लड आर मिक्सचर ऑफ द लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। अब जो टर्बिड वाटर है, ओके, इंक, मिल्क, बटर मिल्क, ब्लड, ये मिक्सचर किसका? लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। इट इज मिक्सचर ऑफ द लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। व्हेन टर्बिड वाटर इज कीप्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर व्हाइल, द सॉइल पार्टिकल इन इट स्लोली सेटल टू द बॉटम। अगर हमने क्या किया? इसको अनडिस्टर्ब किया, तो क्या हो जाता है? जो टर्बिड वाटर होता है वो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर जो टर्बिडिटी लाने वाले जो सॉइल पार्टिकल्स होते, दे गेट सेटल्ड, वो सेटल्ड हो जाते हैं नीचे। The particle of milk or ink, however, do not settle even on being left undisturbed. बट अब ये जो मिल्क है और इंक है, उसमें जो अगर हम उसको ऐसे ही क्या रहते हैं, उसको रख दे टेस्ट ट्यूब को, फिर भी उसके जो पार्टिकल्स होते, सस्पेंडेड पार्टिकल, वो बॉटम में टेस्ट ट्यूब के सेटल्ड नहीं होते। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इन सच मिक्सचर्स बीइंग वेरी टाइनी एंड लाइट। अब इसका क्या रीज़न है क्यों सेटल नहीं होते? बिकॉज उनका जो पार्टिकल साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और वो क्या होते हैं? लाइटर इन वेट, हल्के होते, इसलिए वो बॉटम में जल्दी सेटल होते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज पार्टिकल ऑफ सॉलिड इन सच मिक्सचर्स आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, लाइट इन वेट, रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड। अब उस लिक्विड में इवनली, बराबर बराबर, पूरे हिस्से में फैले हुए रहते हैं। दीज पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड इवन बाय मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। अब इन मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन और सेटलिंग मेथड से भी सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज सेटलिंग में क्या होता है? वो पार्टिकल्स होते हैं हेवियर, तो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद में वो क्या करते हैं? हम उस जार को, उस थिंग्स को टिल्ट करके, टेढ़ा करके ऊपर के लेयर को हटा देते हैं। बट ये यहाँ पे क्या है? यस, दे आर लाइटर इन वेट एंड स्मॉल इन साइज। तो इसीलिए स्मॉल इन साइज होने की वजह से जो फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर से भी वन साइड से दूसरी साइड में ये क्या होते हैं? ये पास ऑन हो जाते हैं। और दूसरा, वो सेटल नहीं होते, इसलिए वो क्या है कि वो क्या है? लाइट इन वेट होते हैं, इसलिए। तो हाउ विल यू सेपरेट सच सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड? तो ऐसे पार्टिकल को लिक्विड से कैसे सेपरेट करोगे? इन लेबोरेटरी, ए सेंट्रीफ्यूज मशीन इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो जो लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है, उसका इस्तेमाल होता है लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क विच रोटेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क विच रोटेट्स